So let us revise in whatever we studied in the first lecture for this helical gear design. So we started with the numerical statement. One more check, is the PDF clearly visible? Someone please respond. Is the PDF clear? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. So yes, we started with the problem statement, which we saw is very much similar to what we saw in spur gear design. Then we started with step number 1, in which we selected tooth profile. I have already told you, if tooth profile is not mentioned in the numerical, you can select it as a 20-degree full depth without even thinking twice about it. Okay. So I don't know what. Okay. So after that, second selection we have to make is helix angle, जो मैंने आपको बताया था design data book में. The range for helix angle is between 15 degree to 45 degree. So for our particular numerical, we selected that value as equal to 18 degree. All right. In step number 2, we found out number of teeth on pinion and gear, and for that we took help of the same table from which we selected minimum number of teeth on pinion for spur gears. हमको पता है उस टेबल नंबर 16-7 से minimum number of teeth on pinion we get it as equal to 19. In case of helical gear, we called those teeth, minimum number of teeth, as formative number of teeth, and from this relationship TF is equal to T divided by cos cube psi, we found out actual number of teeth that are there on the pinion. तो ये अपने को कुछ एक fractional value मिलती है 16.34. It is quite obvious that we cannot have number of teeth equal to 16.234, so we round up the value and we take number of teeth on pinion of helical gear, actual number of teeth equal to 17. यहाँ पे नीचे में हमने लिखा भी हुआ है कि TF is formative number of teeth जो हमने टेबल से उठाए थे, और number of teeth on pinion final value is 17. Now that we have a number of teeth on pinion, we can also find out number of teeth on gear. For that we will require velocity ratio, and velocity ratio can be found out from input RPM and output RPM. उनका अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो we get velocity ratio, and by multiplying that velocity ratio with minimum number of teeth on pinion, we can find out minimum number of teeth on or the number of teeth on gear, right? After that we found out pitch line velocity in terms of normal module. हमने डिस्कस किया, there are two module values associated with helical gear. One is normal module, another one is transverse module. So जो ये DP का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, that is pitch diameter of pinion, it is always in terms of transverse module. ये चीज को पता नहीं कितने स्टार मार्क करने चाहिए मैंने, ये अगर आप भूलते हो तो अगला पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा. You don't have to forget this. Pitch diameter of pinion has to be in terms of transverse module, right? So it is transverse module multiplied by number of teeth on pinion. अगर हम pitch diameter of pinion निकाल रहे हैं, स्पर गियर में एक ही मॉड्यूल था तो मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन. हेलिकल गियर्स में अपने पास दो मॉड्यूल है, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब डीपी का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एमटी लिखेंगे, एमएन नहीं, या फिर एम नहीं. तो हम लोग पिच डायमीटर का फॉर्मूला हमारे सामने है. पिच डायमीटर डीपी इज 17 टाइम्स एमटी एमएन, 17 टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल एमएन. और अगेन फ्रॉम टेबल नंबर 16-11 हमको एमटी और एमएन के बीच का रिलेशनशिप मिल गया, और हमने स्टेप का नाम ही इस तरह से लिखा हुआ है कि पिच लाइन वेलोसिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मॉड्यूल चाहिए हमको. तो ये एमटी को हमको एमएन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फ्रॉम टेबल नंबर 16-11 वी सॉ रिलेशनशिप बिटवीन एमटी एंड एमएन एज एमएन इज इक्वल टू एमटी कॉस फाई. So MT is equal to Mn divided by cos psi we can write. So dP we get it as 17 times MT, that is 17 times Mn upon cos psi. वहां से हम लोग पिच लाइन वेलोसिटी निकालते हैं. पिच लाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को पता है, पाई dn by 60 होता है, बट वी वांट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एंड देयरफॉर वी आल्सो डिवाइड पाई dn by 60. ये जो है डिनोमिनेटर में हम लोग 1000 भी लेते हैं. ये dP के जगह पर हमने 17 मल्टीप्लाइड बाय Mn डिवाइडेड बाय cos psi, सॉरी 17 Mn डिवाइडेड बाय cos psi लिया, और इस तरह से हमको Vp का वैल्यू 1.35 टाइम्स Mn, दिस इज 1.35, ठीक है. अर्लियर ये गलती से 34 लिखा गया था, आई करेक्टेड इट. 1.35 Mn मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में हमको वैल्यू मिलनी चाहिए, दैट्स व्हाई हम लोगों ने डिवाइड बाय 1000 into 60 किया. देन इन स्टेप नंबर 4 यू हैव टू फाइंड आउट डिजाइन पावर एंड टेंजेंशियल टूथ लोड. सो डिजाइन पावर के लिए हमको फॉर्मूला 16-11 से देखने को मिलता है. Design power is
पीडी इज इक्वल टू पी आर इंटू के एल इंटू के डब्ल्यू। हमने देखा कि के एल और के डब्ल्यू कैसे निकालते हैं। जो डेटा अवेलेबल नहीं है वो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो पावर अपने को न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में दे चुका है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, assume suitable data. That means the data which is not there in the numerical can be easily assumed provided you have justification for that, right? कुछ भी नहीं assume कर सकते, but yes, जो valid points है वो आप assume कर सकते हो। So PD PR into KL into KW, KL और KW का वैल्यू हमने assume किया, कंडीशन एज्यूम की, कंडीशन एज्यूम करके अपने को वैल्यू मिला और वहां से अपने को पीडी का वैल्यू फाइनल हुआ ना। Let us start with calculation of FT. Let us start with calculation of FT. Now FT का भी फॉर्मूला टेबल नंबर 16-11 में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे FT का भी फॉर्मूला दैट इज टेंजेंशियल लोड, ये टाउ लिखा है, दिस इज अ मिस्टेक इन द डेटा बुक। FT का भी फॉर्मूला अपने को PD अपॉन VP जैसा ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है देखिए, ऑल सिंबल्स इन दिस टेबल हैव सेम मीनिंग एंड रिलेशन एज इन टेबल 16-1 एक्सेप्ट अदरवाइज मेंशन। दैट मीन्स ये पीडी का मीनिंग वही है जो स्पर गियर में था, ये वीपी का मीनिंग वही है जो स्पर गियर में था, राइट। तो पीडी हम निकाल चुके हैं, पीडी यहाँ पे हमने निकाला जस्ट, इट इज 43.125। तो ये 43.125 पीडी हमने लिख लिया। नीचे में हमने वीपी जस्ट कैलकुलेट किया, पिछली स्टेप में इट इज 1.35 mn मीटर पर सेकंड, तो 1.35 mn लिख दिया हमने। तो अपने को एफटी मिलता है 31.94 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय mn। This is the value of FT that you get. Now अब तक अगर आपने फॉलो किया होगा हेलिकल गियर्स को प्रॉपरली तो आप देख रहे होंगे कि स्टेप सेम है, सिर्फ यहाँ पे 2-3 चेंजेस अपने को देखने को मिले हैं। पहला चेंज है हेलिक्स गियर, दूसरा चेंज है फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ, तीसरा चेंज है 2 टाइप के मॉड्यूल, एक MN और MT। ये 3 चेंजेस के अलावा स्टेप्स सेम है। स्टेप नंबर 5, इन दिस स्टेप नंबर 5 वी सिलेक्ट मटेरियल फॉर पिनियन एंड गियर एंड फाइंड आउट बेंडिंग स्ट्रेंथ FB। ठीक है, नाउ अगेन वी कैन एज्यूम मटेरियल फॉर पिनियन एज वेल एज गियर बिकॉज एज्यूम सुटेबल डेटा न्यूमेरिकल में बोला हुआ है। सो फॉर पिनियन एंड गियर वी सिलेक्ट मटेरियल एज SAE 1045 हीट रेटेड फॉर विच SO इज इक्वल टू 245 मेगापास्कल। ये टेबल अपने को याद हो जाना चाहिए अब तक। इट इज दिस टेबल नंबर 16-10 जहां से अपने को SO का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने SAE 1045, is it 1045? 1045, yes. 1045 heat rated, 1045 heat rated. तो okay, there is some mistake here I guess. यहाँ पे 2 वैल्यूज दी हुई है, SAE 1045 heat rated, SAE 1045 heat rated. This both are essentially the same material with different SO values. So I think we have taken 245, fine. So आप कुछ भी कर सकते हो, ओनली थिंग इज इट शुड बी हीट रेटेड। व्हाई इट शुड बी हीट रेटेड? बिकॉज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में वो बोला हुआ है कि वो जो मटेरियल है हीट ट्रीटमेंट, सजेस्ट द हीट ट्रीटमेंट, दैट मीन्स द मटेरियल शुड बी हीट रेटेड। सो SAE 1045 सिलेक्ट किया विथ SO वैल्यू ऑफ 245 फ्रॉम टेबल नंबर 16-10, राइट। तो SO सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में स्टेप नंबर 6 में हम लोग दोनों पिनियन और गियर के लिए हमने सेम मटेरियल किया बिकॉज कुछ न्यूमेरिकल में बोला नहीं है, तो वी कैन इजीली एज्यूम, फाइन। लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 6, बेंडिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला FD। इस फॉर्मूले में इस टेबल नंबर 16-11 में हम लोग देखते हैं FD का कुछ अलग फॉर्मूला है क्या। FD का फॉर्मूला क्या वही दिख रहा है अपने को, SOCV YBM। सिर्फ M की जगह आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मॉड्यूल MN अपने को वहां पे लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है कि M की जगह पर यहाँ पे MN है और CV इज वेलोसिटी फैक्टर फॉर विच वी हैव टू रेफर टेबल 16-13 एंड Y इज मॉडिफाइड लुईस फॉर्म फैक्टर जिसमें अपने को टेबल नंबर 16-5 यूज करना है। और ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप हाईलाइट करो, ध्यान में रखो, भूलना मत। यूज T इज इक्वल टू TF और TF क्या है? फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ। व्हाट इज TF? TF इज फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ। तो ये जो टेबल नंबर 16-5 में अपने को T यूज करना है, 16-5 पे चलते हैं। 16-5 में देखो अपना जो टूथ प्रोफाइल है वो 20 डिग्री फुल डेप्थ है। यहाँ पे Y का वैल्यू अपने को 0.485 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाय T होता है, जहाँ पे T इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ है। पर ये नंबर ऑफ टीथ कौन से? हेलिकल गियर में तो 2 टाइप के टीथ है, तो कौन से नंबर ऑफ टीथ? तो वो नंबर ऑफ टीथ अपने को लेने हैं फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ, TF। यूज T इज इक्वल टू TF।
दिस इज वन मोर चेंज एज कंपेयर्ड टू स्पर गियर डिजाइन. ठीक है. So coming back to solved numerical, FB is equal to SOCV YBMN, राइट. यहाँ पे 1000 से 2000 आरपीएम के बीच में अगर अपने को सीवी का वैल्यू आपको पता है कि वी हैव टू एज्यूम सीवी वैल्यू. जिस तरह से अपने को स्पर गियर का हमने डिस्कस किया था 0.3, 0.4, 0.5, उस तरह से उन्हीं वैल्यूज में 0.05 अपने को ऐड करना है. जैसे लेस देन 1000 आरपीएम था स्पर गियर में, यहाँ पे अगर लेस देन 1000 आरपीएम है तो हम लोग लेंगे वहां पे 0.3 लेते थे, यहाँ पे 0.35 लेंगे. स्पर गियर में 1000 से 2000 के बीच में 0.4 हम लोग एज्यूम करते थे, यहाँ पे हम लोग 0.45 का वैल्यू एज्यूम करके चलेंगे सीवी का. ठीक है. तो सीवी वी एज्यूम डेटा इज इक्वल टू 0.45. बी का वैल्यू एज्यूम देखो एसओ तो अपने पास है 245, सीवी अपन ने एज्यूम कर लिया. वाई इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, बी हैज टू बी एज्यूम्ड. अब बी का वैल्यू कहां से लेना है? टेबल नंबर 16-11 से. लेट अस गो टू टेबल नंबर 16-11. देखो प्रैक्टिस में यहाँ पे सबसे नीचे में देख सकते हैं आप द वैल्यू ऑफ बी. बी इज फेस विड्थ, भूलो मत, बी इज फेस विड्थ. स्पर गियर में क्या रेंज है? 4.5 टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल डिवाइडेड बाय tan psi टू 20 टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल डिवाइडेड बाय tan psi. इसके बीच का कोई भी वैल्यू हम लोग, सॉरी बोलिए विलास. आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर. आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर. एक मिनट, मैं ये नहीं सर. अभी जब मैं बोल रहा हूं तब थोड़ा कुछ इम्प्रूव हुआ है? अभी ठीक है सर. ओके ठीक है. वो थोड़ा बीच में कभी कभार इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वैसा होता है थोड़ा सा. फाइन. ओके लेट अस कंटिन्यू. सो ये जो फेस विड्थ है इसका रेंज है 4.5 टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल डिवाइडेड बाय tan psi से लेकर 20 टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल डिवाइडेड बाय tan psi. तो जैसे कि हमने स्पर गियर में, आपको अगर याद होगा, लेट मी टेक यू टू द टेबल ऑफ स्पर गियर. लेट मी टेक यू टू टेबल ऑफ स्पर गियर. यहाँ पे देखो फेस विड्थ का कहां पे गया है, कहां पे था वो? एक मिनट, लेट मी फाइंड इट आउट फॉर यू. हाँ 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 12.5 टाइम्स मॉड्यूल के बीच में लिया था हमने फेस विड्थ स्पर गियर में. लेकिन हेलिकल गियर्स में क्या करना है? हेलिकल गियर्स में अपने को, और अपने को याद होगा कि 8.5 से लेकर 12.5 के बीच की वैल्यू हमने 10 टाइम्स मॉड्यूल करके हमने एज्यूम करके चले थे. तो यहाँ पे भी हमको 4.5 टाइम्स एमटी डिवाइड बाय tan psi से लेकर 20 टाइम्स एमटी डिवाइड बाय tan psi के बीच की वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी. सो लेट अस से वी एज्यूम्ड द वैल्यू ऑफ 12 टाइम्स एमटी डिवाइडेड बाय tan psi. ठीक है, ये अपना एजम्पशन है. सीवी का 0.45 का वैल्यू अपना एजम्पशन है. अब एमटी के जगह पर अपन अपने को पता है एमटी इज इक्वल टू mn अपॉन cos psi. यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है, एक मिनट, वी नो एमटी इज इक्वल टू mn अपॉन cos psi एज पर टेबल नंबर 16-11. तो ये भी एमटी के जगह पर अपने को mn अपॉन cos psi लिखना पड़ेगा. ये अपन ने, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग, 12 mn, ये एमटी के जगह पर mn अपॉन cos psi लिखा हमने, tan psi को sin psi अपॉन cos psi लिखा, cos psi कैंसिल हो गया. तो फेस विड्थ पे हम लोग 12 mn डिवाइडेड बाय sin psi ये लिख सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ है क्या जो नहीं समझा? फेस विड्थ अपन ने 12 mt डिवाइडेड बाय tan psi जो लिखा उसको 12 mn डिवाइडेड बाय sin psi कैसे लिख सकते? ये नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या? तो आप बता दीजिए मुझे. वी विल डिस्कस इट once again. क्लियर? आई नीड योर रिस्पॉन्स. एक बार रिपीट. ओके नो वरी. देखो फेस विड्थ का जो रेंज है वो हम लोगों ने स्पर गियर में देखा था 8.5 टाइम्स मॉड्यूल से 12 टाइम्स मॉड्यूल स्पर गियर में. तो हमने उन दोनों के बीच का वैल्यू सिलेक्ट किया था 10 टाइम्स मॉड्यूल. ठीक है. in case of helical gears the range is 4.5 टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल डिवाइडेड बाय tan psi से लेकर 20 टाइम्स ट्रांसवर्स मॉड्यूल mt, ये mt है, ठीक है ना, mt नॉट mn, से लेकर 20 टाइम्स mt डिवाइडेड बाय tan psi है. तो इसके बीच की एक वैल्यू अपने को एज्यूम करनी है. तो अपने 12 टाइम्स mt डिवाइडेड बाय tan psi ये एज्यूम किया. ठीक है. नाउ
अपने को पता है कि जितनी भी वैल्यूज अपने को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे mn है, बेंडिंग स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है उसमें mn है, तो आई कैन नॉट कीप दिस फेस विड्थ इन टर्म्स ऑफ mn mt, आई हैव टू ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ mn। तो हमने क्या किया, mt और mn के बीच का रिलेशनशिप यूज किया, जो हम यहाँ पे कर चुके हैं स्टेप नंबर 3 में। mt इज mn अपॉन कॉस फाई, और ये अपने को कहां से मिला, mt इज इक्वल टू mn अपॉन कॉस फाई, टेबल नंबर 16-11 से, नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू mt, mn इज इक्वल टू mt कॉस फाई, तो mt इज इक्वल टू mn अपॉन कॉस फाई। तो ये अपन ने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। mt के जगह पर हमने यहाँ पे देखिए, जहां पे मेरा अभी फिलहाल कर्सर है, mt की जगह पर अपन ने mn अपॉन कॉस फाई लिखा। ये tan फाई का डिनोमिनेटर में हमने sin फाई डिवाइड बाय cos फाई किया, cos फाई कैंसिल हो गया, तो हमको मिलता है 12mn डिवाइडेड बाय sin फाई। ये साई पे हमने 18 डिग्री रख दिया, तो 12 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 18 डिग्री इज 38.83 टाइम्स mn। तो ये जो फेस विड्थ है, इसका वैल्यू mn के टर्म्स में अपने को मिल गया, नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में 38.83 टाइम्स नॉर्मल मॉड्यूल। नाउ लेट अस मूव टू कैलकुलेशन ऑफ ल्यूइस फॉर्म फैक्टर। ये अपने को पता है, ल्यूइस फॉर्म फैक्टर हैज टू बी कैलकुलेटेड एज पर टेबल नंबर 16-5। लेट अस मूव टू टेबल नंबर 16-5। टेबल नंबर 16-5 में आप देख सकते हो मॉडिफाइड ल्यूइस फॉर्म फैक्टर y फॉर इन्वॉल्यूट गियर्स। इसमें टाइप ऑफ प्रोफाइल अपने को देखनी पड़ती है 20 डिग्री फुल डेप्थ, और इसके सामने फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 0.485 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाय t। t इज व्हाट, नंबर ऑफ टीथ। और हमने FB के फॉर्मूले में ये देखा हेलिकल गियर के डिजाइन प्रैक्टिसेस में कि यूज t इज इक्वल टू tf। व्हाट वी सॉ, यूज t इज इक्वल टू tf। तो हम लोग जो फॉर्मूला ये लिखा हमने टेबल से देख के 0.485 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाय t, इसमें t इज इक्वल टू 17 लिखेंगे क्या? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन तो हमने 17 कैलकुलेट किया है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन तो 17 कैलकुलेट किया है, तो 17 यूज करना है क्या? नहीं, अपने को करना है यूज यहाँ पे फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ, दैट इज 19। तो हम लोग फिर से यहाँ पे yp के कैलकुलेशन पे आते हैं। yp के कैलकुलेशन पे देखिए, यहाँ पे t के जगह पर, लेट मी जूम इट आउट, तो यहाँ पे t के जगह पर tf यूज करना है एज पर डेटा बुक। तो यहाँ पे tf इज इक्वल टू 19 हमने यूज किया, तो अपने को yp मिलता है 0.33, दिस इज 3। ओके, ये आप ध्यान में रखो, या फिर इसको मैं और एक बार रेक्टिफाई करके आपको भेजते वक्त ध्यान से भेजूंगा थोड़ा सा, 0.33, ठीक है। अभी अपने को पता है अपने को yg भी कैलकुलेट करना पड़ता है, yg भी कैलकुलेट करना पड़ता है, yp और yg दोनों कैलकुलेट करते हैं, और उसमें से छोटी वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं। पर गियर में वैसा ही किया था ना, we selected yp, we selected yg, we calculated yp, we calculated yg, और वहां से हमने छोटी वैल्यू दोनों में से yp और yg में से छोटी वैल्यू हमने सिलेक्ट किए थे, ठीक है। नाउ अगर फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 19 है, तो यहां पे भी अपने को गियर में फॉर्मेटिव नंबर ऑफ गियर यूज करने पड़ेंगे। सो इफ दिस इज 19, फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर शुड बी 19 मल्टीप्लाइड बाय 3। गेटिंग इट? फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ on pinion, if it is 19, so formative number of teeth on gear should be equal to 19 multiplied by velocity ratio 57, और उससे जो yg कैलकुलेट होता है modified Lewis form factor, we get it as equal to 0.435. now we have yp is equal to 0.33 and yg is equal to 0.435. हम देख के बता सकते हैं कि yp छोटा है as compared to yg, that means modified Lewis form factor of pinion is less than modified Lewis form factor of gear, and therefore अभी हम लोग FB में सारे के सारे वैल्यूज पुट करके लिख सकते हैं। SO we know it is 245 as per the selected material SAE 1045 heat treated. We assumed the value of CV is equal to 0.45. Then we have the value of face width B, जो हमने 38.83 कैलकुलेट की। ये देखिए यहाँ पे we calculated the value of B as 38.83, वो हमने लिख दिए टाइम्स mn, 38.83 टाइम्स mn। Then we wrote the value of y, modified Lewis form factor 0.435, और 0.33 में से छोटा 0.33 है तो 0.33 लिख दिया, multiplied by mn as per the formula, and we get the value of FB in terms of normal module mn as equal to 1411.64 mn square Newton. We get 1411.64 mn square Newton as the value of FB in terms of normal module, right? Next, हमने क्या किया था स्पर गियर में, FT मिल गया, FP मिल गया, फिर FT और FB को इक्वेट किए थे और वहां से हमने मॉड्यूल निकाले थे। आपको अगर याद होगा, हमने पहले FT निकाला, हमने उसके बाद में FB निकाला, उसके बाद में उन लोगों को इक्वेट करके हमने मॉड्यूल निकाला। हम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। 7,
फाइंड आउट, स्टेप नंबर 7 इज फाइंड आउट स्टैंडर्ड मॉड्यूल एम एन। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इन लिमिटिंग कंडीशन वी कैन इक्वेट एफ टी विथ एफ बी। वी नो द वैल्यू ऑफ एफ टी इज 31.94 into 10 to the power 3 divided by mn. I'll show it to you once again. Ft is 31.94 into 10 to the power 3 divided by mn Newton, and Fb is, where is Fb? 1411.64 mn square. So 1411.64 mn square is equal to 31. Fb is equal to Ft कर दिया। यहाँ से mn का वैल्यू अपने को मिलता है 2.82। What is the value of normal module that we get in step number 7 is 2.82. Now we know this cannot be a standard value of module, so we have to go to table number 16-7 to find out actual value of the module. अपने को पता है अपन प्रिफर्ड चॉइस से सिलेक्ट करते हैं मॉड्यूल। सो यहाँ पे आप देखो टेबल नंबर 16-7 में प्रिफर्ड वैल्यूज जो अवेलेबल है 2.8 के बाद 3 है। 2.8 के बाद कौन सी प्रिफर्ड वैल्यू है, 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वी विल सिलेक्ट mn is equal to 3. We will select mn is equal to 3 here. Clear? उसके बाद आपको पता है स्टेप नंबर 8 में वी फाइंड आउट वी कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यूज ऑफ डीपी, डीजी, एफटी एंड सीवी। ये स्टेप्स पर गियर जैसा ही है। यहाँ पे हमने डीपी, डीजी, एफटी, सीवी, वीपी ये सब कैलकुलेट किया। उसके बाद वी फाइंड आउट, नाउ सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ डीपी, डीजी, फेस विड्थ वगैरह सब कुछ अपने पास होने के कारण वी कैन फाइंड आउट फाइनल वैल्यू ऑफ एफबी। We can find out final value of FB. Final value of FB we get it as 49,348.85 न्यूटन। इसके बाद में हम डिजाइन चेक करते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं स्पर गियर में। डिजाइन चेक ये होता है कि FB जो आ रहा है अपना दैट शुड बी ग्रेटर देन FT। FB जो आ रहा है वो अपना दैट शुड बी ग्रेटर देन FT। उसके बाद हम लोग FD निकालते हैं, उसके बाद हम FE निकालते हैं और उस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। नाउ deliberately I did not solve it completely because my motto was to tell you the differences between design of spur gears and design of helical gears. That was my motto. हम लोग फिर से क्या क्या चेंजेस है डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद का स्टेप नंबर 10 ऑनवर्ड्स जो सॉल्व करना है आई लीव इट टू यू टू सॉल्व। राइट, आई कैन, आपको सिर्फ जहां तक के मेरा कैलकुलेशन है हर एक डिजाइन चेक सेटिस्फाई होता है। आपको वही चेक करना है एक बार कि सारे के सारे डिजाइन चेक, 3 डिजाइन चेक होते हैं, एक FB, FT, FD, FW, FD, FEN। ये 3 डिजाइन चेक अगर फाइनल सेटिस्फाई हो गए तो हम बोलते हैं कि डिजाइन बराबर है हेलिकल गियर्स का। ठीक है, तो स्टेप नंबर 10 ऑनवर्ड्स इट इज योर ड्यूटी टू एक्चुअली डू and solve that numerical. All right.